Hello and welcome to the session. This is session number 5th in the series of file handling, and today we are going to develop some of the most common and frequently asked conceptual programs related to file handling. Now we will move to first program, and for that first we will study what are the major steps to create this program, and then we will move to the editor. So to program, to find number of lines, number of spaces, number of tabs and characters in any existing external file, step 1 is to create a file pointer and open an external file to it. If a file is not accessible, print an error message and close the program. Now step 3, which is a customizable step in any file handling based program. So first we have to do inside 3, using any looping command, read the file till end of file is not reached and increase the appropriate counter as number of character, number of line, number of tab or number of spaces till you have not encountered the end. Finally close the loop. Then step 4, close the file, and step 5 as a termination of our program, end the main. Now move to the editor. In editor, step 1 is already pre-created to save the time. I will just explain it and we will start coding from step 2. So this is our editor. Let me zoom the content. Hope it is visible to you all. So initially I have declared 2 header files. Then inside main, step 1 is created. What we have to do in step 1, create a file pointer fp, open a file to it. Just to explain, I have mentioned any file in file.txt. So in this particular program I want to read my another C program where I will count how many lines are there, how many characters are there, how many tabs are there. So I will replace this file with some another file name. So I want to count content from this file. So I will copy this name and place it over here. Remember, this is a C file, so extension will be .c. Open this file in read mode. Then check if file fp equals to null, printf can't open a file, return -1. After this, I have to take one character from a file, and this will be a loop based recursive exercise till end of file is not reached. So I will declare one variable ch of character type, and to hold counting of individual number of character, number of lines, number of spaces. So I have used, और इसी के साथ हमको जो काउंटिंग करनी है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं, कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, कितने नंबर ऑफ टैब हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं n ln फॉर नंबर ऑफ लाइंस, n char नंबर ऑफ करेक्टर्स, n space नंबर ऑफ स्पेसेस एंड n tab नंबर ऑफ टैब्स. इतना करने के बाद अब मैं एक करेक्टर अपने वेरिएबल पे रीड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ fgetc फंक्शन. इस फंक्शन को हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था, जिसमें फाइल्स को रीड करने के सारे फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए थे. तो ch इज इक्वल टू fgetc. ये फंक्शन कहाँ से गेट करे? ये फंक्शन फाइल से गेट करे. fp मेरे पास क्या है?
fp मेरे पास जो है वो ये जो मैंने फाइल ली यहाँ पे part4 array of structure.c ये यहाँ से आया। ठीक है, अब मुझे ये एक्सरसाइज लूप में करनी है, तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। while while true, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा हमेशा ट्रू है, और इसके अंदर मैं चेक करूंगा if ch equals to null, ch equals to end of file, अगर end of file है तो मेरा प्रोग्राम यहीं से ये लूप ब्रेक कर दे, ब्रेक। अगर ऐसा नहीं है तो ये जितनी भी चीज़ मैंने इसमें एंटर की है, जो किस पे एंटर होके आई है, ch पे एंटर होके आई है, एटलीस्ट वो एक करेक्टर तो है ही, तो मैं उस करेक्टर का काउंटर बढ़ा दूंगा, करेक्टर प्लस प्लस। इसके साथ ही ये या तो स्पेस है या लाइन है या टैब है, तो उसको काउंट करते हैं। इफ ch is equal to space, if it is so, then increase the counter of space. Next, if ch equals to tab, then increase the counter of number of tab by 1. If ch equals to new line, then increase the counter by 1 for new line. तो इस तरीके से मैंने ये चारों चीज़ें अपने पास रीड कर ली, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाए। लेकिन एंड ऑफ फाइल के लिए मुझे नेक्स्ट करेक्टर भी तो चाहिए रीड करने के लिए, तो जो ऊपर स्टेटमेंट हम लोगों ने ये यूज़ किया था, इसको एक बार और से इस लूप के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। तो अब यहाँ से इसने नेक्स्ट करेक्टर ले लिया और ये मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। यहाँ पे आके while एंड हुआ। इसके बाद स्टेप 4 था हमारे पास, जिसमें हम लोग बात करते थे क्लोज द फाइल। एफ क्लोज, कौन सी फाइल मेरे पास है, फाइल पॉइंटर पे, fp पॉइंटर पे। और इसके बाद मेरे प्रोग्राम का एंड आ गया, रिटर्न 0 एंड एंड मेन। इस तरीके से ये प्रोग्राम मेरा काम करेगा, ये रीड करता जाएगा और फाइनली सबकी काउंटिंग रख लेगा। अच्छा, इस प्रोग्राम में काउंटिंग हो गई, लेकिन एक पार्ट रह गया कि ये जो काउंटिंग हुई है उसकी प्रिंटिंग भी करनी है हमको। तो ये जब वाइल लूप मेरा चल जाएगा और सारे मेरे पास जो ये काउंटर्स हैं इनमें कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी होगी, तो लूप के बाद और फाइल को क्लोज करने से पहले इसको प्रिंट करा लिया जाए। printf /n number of character is equals to %d and then n char। इसी को रिपीट कर लेते हैं बाकी के लिए भी, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये अब इनको सबको चेंज कर लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस के बाद नंबर ऑफ टैब स्पेसेस, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस।
रिस्पेक्टिव वेरिएबल डाल देते हैं। स्पेस के लिए SP, ये टैब होना चाहिए और स्पेस यहाँ पे आएगा N स्पेस। ये सारी वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ हैं इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। इसने एक एरर शो की। ओके, हेडर फाइल की स्पेलिंग गलत है, stdio.h। तो चलिए इस तरीके से पूरा प्रोग्राम ये बन गया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। नीचे printf हो रहा है, ये सब printf होगा। तो इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। It is error free and let's execute it. Here it is. You can see the outcome. Number of characters 881, number of lines 27, number of tab spaces 14 and number of spaces 90। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को भी खोल के एक बार देख लेते हैं कि कौन सा प्रोग्राम हम लोगों ने लिया था जिसको कि वहाँ फाइल नेम दिया है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और ये जो C फाइल थी इसी को एक बार ओपन करके देखता हूँ कि किसमें नंबर ऑफ लाइंस और स्पेसेस हम लोगों ने चेक किया। पार्ट 4, ये प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के अंदर से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये प्रोग्राम आपको मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, आपके पास इसका डेटा होगा। इसी फाइल को हम लोगों ने यहाँ पे लिया और ये कैलकुलेट किया कि इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितने नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, कितने नंबर ऑफ टैब्स हैं और कितने नंबर ऑफ करेक्टर हैं। तो ओवरऑल इसका जो स्टेटस निकल के आया वो ये है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, उसके नंबर ऑफ करेक्टर, लाइंस, टैब, स्पेसेस, इन सब का डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसका कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको अपने मशीन पे डाउनलोड करके रन करके चेक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा था देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज program to copy content of one file to another file and delete the first file, that is rename a file। तो हमको एक फाइल लेनी है, उसको रीड करना है, उसके सारे कंटेंट को एक नई फाइल बना के उसमें कॉपी कर देना है और पुरानी वाली फाइल को हटा लेना है। तो ट्रीटमेंट ऐसा होगा जैसे हमने एक फाइल को रीनेम कर दिया। तो इसके लिए स्टेप्स क्या हैं उनको देखते हैं। तो स्टेप 1 है क्रिएट अ 2 फाइल पॉइंटर्स एंड ओपन एन एक्सटर्नल फाइल टू इट। Step 2, open a source file in read mode with the help of R and target file in write mode with the help of mode W. If file is not accessible, print an error message and close the program. And step 3, read character by character from source file and copy it to the target file till end of file is not reached. तो एक एक करेक्टर को फाइल से रीड करिए और चेक कीजिए कि क्या वो एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। अगर नहीं है तो उसको नई फाइल में कॉपी करते चले जाइए और फाइनली इन दोनों फाइलों को क्लोज कर दीजिए और आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाए। तो एंड पे ये इसका प्रोग्राम फ्लो है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। इसी को हम लोग ट्राई करते हैं अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो नाउ वी विल मूव टू द एडिटर। Create a new file and just to save time
I will copy some part from here. This is program to rename a file. stdio.h include stdlib.h main create file pointer. अब तो मैं यहाँ पे दो फाइल पॉइंटर लेता हूँ, मुझे दो फाइल पॉइंटर की ज़रूरत थी, फाइल इन रीड एंड फाइल पॉइंटर फॉर राइट। दोनों पे स्पेसिफिक फाइल ओपन कर लेते हैं। fr इक्वल्स टू वही पुरानी वाली फाइल ले लेते हैं, ये फाइल हम लोगों ने ली थी, इसको रीड मोड में ओपन कर लेते हैं और इसी की डुप्लीकेट कॉपी हम लोग बनाएंगे। f open part 4 array of structure dot c in read mode। सिमिलरली इसको रीनेम करना है हमको, तो fw इक्वल्स टू f open new renamed array file dot c और इसको हम लोग डाल देते हैं राइट मोड में। ठीक है, तो मेरे पास दो फाइलें हो गई, एक को रीड मोड में ओपन किया और जिस पे मुझे रीनेम करना है उसको मैंने डब्ल्यू मोड पे ओपन किया। अब इन दोनों को ही चेक कर लेते हैं कि ये ओपनेबल है कि नहीं है। इफ fr equals to null, printf put s लिख देते हैं, put s cannot open a file and return back, return -1। ये हो गया। इसी तरीके से दूसरे के लिए ले लेते हैं। This will be fw is equal to r cannot create a file and then return। अगर ये दोनों ही काम हो गए तब हमको रीडिंग का प्रोसेस अप्लाई करना है। तो हम एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का ले लेते हैं, इस पे एक वैल्यू स्टोर करके देखते हैं, कहाँ से, फाइल से, fgetc उस फाइल से जिसको रीड मोड में लाए थे, fr यहाँ से रीड किया। ठीक, अब इसको हम लूप में लेते हैं क्योंकि हमको ये काम लगातार करना है। एंड वाइल लूप, ये जो रीड हो गया इसको हमें फाइल पे कॉपी कर देना है, किस पे, जो कि राइट पे थी। f put c पे क्या डालना है, जो ch है। कहाँ डालना है, जो fw है, इस पे डाल दिया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर फिर से रीड करना है, तो ये वाला स्टेप हम लोग एक बार कॉपी करके इस लूप के अंदर डाल देंगे। ये काम हो गया आपका। और अगर मेरे पास जो लास्ट में कैरेक्टर आया है वो एंड ऑफ फाइल भी तो हो सकता है, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा जैसे पहले वाले प्रोग्राम में किया था। इफ ch इक्वल्स टू एंड ऑफ फाइल देन ब्रेक। अगर ऐसा नहीं है तो मैं नया कैरेक्टर फिर से रीड कर लूँगा। ये मेरे पास वाइल के अंदर की सारी एक्सरसाइज हो गई। अब स्टेप 4, क्लोज द
files. fclose, fr, fclose, fw. Now for renaming I have to do something else. पहले वाली फाइल का स्टेटस खत्म हो जाना चाहिए. रिमूव विच, ये ओरिजिनल फाइल. ये फाइल यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा. ऐसा करने के बाद रिटर्न 0, ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म. तो इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो मैं 1 मिनट में समराइज इसको कर देता हूँ. मैंने रीडिंग और राइटिंग के लिए 2 फाइल पॉइंटर्स लिए, एक पे रीड फाइल बनाई और राइटिंग पे नई जो रीनेम करके फाइल बनानी है उस पे. इन दोनों को चेक कर लिया कि ये ओपनेबल है कि नहीं. अगर नहीं है तो एरर मैसेज प्रिंट कर दिया. ऐसा होने पे मैंने एक वैल्यू एक कैरेक्टर की स्टोर की और उसको चेक किया कि वो एंड ऑफ फाइल तो नहीं है. अगर नहीं है तो उसको मैंने अपनी टारगेट फाइल पे स्टोर कर दिया और नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करता रहा जब तक कि सारे एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच गए. ऐसा करने के बाद दोनों फाइलों को क्लोज किया और पहले वाली फाइल को रिमूव कर दिया. दिस इज लाइब्रेरी फंक्शन. Finally, end is closed over here. Now try to compile it. इसको कोई नाम दे देते हैं, yt copy new .c. इसको सेव किया. नॉट चेक, नो एरर्स. नाउ चेक वेदर दिस न्यू फाइल इज क्रिएटेड देयर और नॉट. क्या नाम था? न्यू रीनेम्ड एरे फाइल. किसकी जगह पे? पार्ट 4 एरे स्ट्रक्चर. अब इसका आउटपुट चेक करते हैं. यस, प्रोसेस कंप्लीट. तो इसके प्रोसेस कंप्लीट होने में क्या है, ये जो ऊपर हमको फाइल दिख रही है, इसको जूम करके दिखाता हूँ. ये जो फाइल आपको दिख रही है पार्ट 4 एरे ऑफ स्ट्रक्चर डॉट सी, ये अब हट जानी चाहिए और इसकी जगह पे नई फाइल न्यू रीनेम्ड ARY फाइल डॉट सी एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो लेट्स चेक टू द फोल्डर. ये देखिए, ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर फाइल हमारे पास पार्ट 4 अब नहीं है. इसकी कॉपी मैंने पहले से बना दी थी, वो है. और ये जो न्यू रीनेम्ड फाइल, ये कहीं हमको दिखनी चाहिए. यस, न्यू रीनेम्ड फाइल. लेट अस ओपन इट. इसको ओपन करते हैं. यहाँ पे देखिए ये फाइल आ गई और इसमें वो सब लिखा हुआ है जो उस बुक में, उस प्रोग्राम में था. स्ट्रक्ट बुक. ये देखिए हम लोगों ने इस फाइल को, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ. ये फाइल हम लोगों ने किस मोड में ओपन की थी? W मोड में. मीन्स राइट नेम, राइट मोड. एंड C हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड दिस फाइल इन राइट मोड. ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल फाइल नेम है यहाँ पे, जिसको उन्होंने सोर्स के लेवल पे लिया था, पार्ट 4 एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास इस फोल्डर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. आप इसको अपने सिस्टम पे भी जब डाउनलोड करके रन कराएंगे, इसको चेक करके देखिएगा, ये ओरिजिनल फाइल हट जाएगी और दूसरे नेम से ये रीनेम होके अवेलेबल हो जाएगी. नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल. Write a program to create an employee structure having employee ID, age, salary and name for a member. Give maximum records to this structure and finally store them to a file named employee data. तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर पे डेटा डालना है सारे मेंबर्स पे, और उस स्ट्रक्चर पे जो डेटा है उसको फाइल में स्टोर करना है और बाद में जाके चेक करना है कि जो फाइल में स्टोर हुआ वो वापस से रीड होने वाला है कि नहीं. तो इसको हम लोग दोनों तरीके से चेक करेंगे.
टेक्स्ट फाइल को ओपन करके भी दिखाएंगे कि उसमें डेटा गया कि नहीं, और उस फाइल को सी प्रोग्राम में रन करके भी देखेंगे कि क्या उससे डेटा रीड होके अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं. So what are the steps for it? As usual, step 1 is to create a file pointer and open a file to it. So step 1, create a file pointer and open a employee data.txt to it. In W mode means write mode. So step 2, in loop, read values for structure variable and store them to a file using fprintf statement. Please remember fprintf statement. Step 3, close the file and reopen the same file in read mode. Now, writing mode is over, read mode is there. Close the file and end the main. This is what we have to do in this program. So let's move to the program. This is how. तो इसको बनाने के लिए कुछ जो इनिशियल पार्ट है उसको वैसा ही ले लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए प्रोग्राम हमारा. ये हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था, इसके कुछ पार्ट को ले लेते हैं और इसी को एडिट कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा प्रोग्राम. प्रोग्राम टू read record from structure and store it to file. हम लोगों ने हेडर फाइल ले ली stdio.h, stdlib.h. यहाँ पे फाइल पॉइंटर बना लेते हैं. फाइल पॉइंटर में हमको एक ही ज़रूरत होगी तो वी विल यूज़ इट fp, और इसको बोला fp. f ओपन पे हमको कौन सी फाइल चाहिए, हमको फाइल बनानी थी employee data.txt, emp data.txt. ये फाइल बना रहे हैं और इस फाइल को हम लोग वहाँ पे लिया था W मोड, यहाँ पे हम इसको W+ मोड लेंगे और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है. if fp is equal to null, if fp is equal to null, put s, can't open a file, return -1. अब यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा. स्टेप 2 में क्या था, क्रिएट ए स्ट्रक्चर. सो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. struct employee, इसके अंदर हमें देना था इंटीजर emp id, इंटीजर एज, कैरेक्टर नेम से ऑफ साइज 50 एंड फ्लोट सैलरी. 4 मेंबर्स हो गए और इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका कि नाम दे दिया e. तो स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड, फाइल हैज बीन ओपन. नाउ accept values to this structure, but how many times I have to use it, how many time items has to be stored on this structure, it will be depend on the maximum value. So we will go up and declare maximum record size. To keep it simple, I am using it only max as 2. Now to read variable is required means I need a character variable which is able enough to store values to a file. So max is created, character ch is created, one counter variable I is created. Now let's start.
for I equals to 0, I is less than max plus plus I. Inside this is end for, just for safer side I am marking it. इसमें हमको वैल्यूज को रीड करना है. पुट s enter employee ID scanf %d e.emp id e.emp id. Similarly, I have to read other values too. So I have placed statements to read all such values from the keyboard. Now once they have been read, I have to place them into a file with the help of fprintf. fprintf में पहला आर्गुमेंट क्या होता है? टारगेट, जहां मुझे ले जाना है. टारगेट इज fp. Now what I have to place? I have to place all such values. Say id equals to %d. After id it is name. Name equals to %s. Then age equals to %d. Then salary equals to %5.2 f. Now mention all such values in same sequence. It is, first one is employee ID, second is employee name, then third is employee age, and last one is employee salary. So I have placed all such values over here. तो ये सारी वैल्यूज इस पे स्टोर हो गई. अब इतना करने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड भी तो करना होगा. तो ये इसके थ्रू ऐसे रीड करता रहेगा और फाइल में प्लेस करता रहेगा. कब तक? जब तक कि मैक्स सेटिस्फाई नहीं हो जाता. ये डेटा हमने फाइल में प्लेस कर दिया. अब इसको चेक करना होगा कि ये मेरे पास फाइल में गया कि नहीं गया. तो इसको रीड करके भी देखें. तो रीड करने के लिए क्या होगा? ऊपर वाली फाइल को क्लोज करेंगे, फिर से नए मोड में ओपन करेंगे. एक साथ एक फाइल दो मोड में नहीं रह सकती. तो पहले राइट मोड था, उसको क्लोज किया. अब इसको फिर से ओपन करेंगे रीड मोड में. एफ ओपन, क्या नाम था? ऊपर से ही ले आते हैं. तो एरर नहीं रहेगी. ऊपर से लेके आएंगे तो सिमिलर काम होता रहेगा. एम्प्लॉय डेटा डॉट टेक्स्ट. अब इसको हमको किस मोड में रखना है? रीड मोड में. तो ये मेरे पास रीड मोड में आ गया. रीड मोड में आने के बाद अब हम इससे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे. ch equals to
एफ गेट सी कहाँ से लाना है? तो एफ गेट सी, इसमें हमें कहाँ से डेटा चाहिए? हमको एफ पी से डेटा चाहिए। एक चीज़ और, जो ये जो फॉर लगाया है इसमें सारा डेटा एक बार रीड हो जाएगा, उसके बाद हमको एफ फ्लश भी कॉल करना पड़ेगा। एफ फ्लश stdin, इससे क्या होगा, बफर में जो कोई भी ट्रेसेस पड़े हैं तो वो क्लीन हो जाएंगे। वापस से आते हैं, सी एच इज इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी, इसको चेक करते हैं कब तक, जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। तो वाइल सी एच नॉट इक्वल्स टू ई ओ एफ, ये प्रोग्राम आया यहाँ पे। अब हम इसमें से एक एक करेक्टर को लेंगे और प्रिंट करते चलेंगे। पुट सी क्या लिखना है हमको? करेक्टर लिखना है। कहाँ पे लिखना है हमको? स्टैंडर्ड आउटपुट पे। स्टैंडर्ड आउटपुट मीन्स ब्लैक स्क्रीन टर्मिनल जिसको आप बोलते हैं। तो STDOUT, स्टैंडर्ड आउट। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रीम्स देखा था, उसमें STDOUT एक प्री डिफाइंड स्ट्रीम था। जैसे ही फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम होता है सी में हमको ये स्ट्रीम मिल जाती, तो आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको प्लेस किया और नेक्स्ट करेक्टर को रीड करने के लिए अब हम ट्राई करेंगे। F get C again FP. So in this way I am continuously reading a character from a file and putting it onto the screen. ये आपका end while हो गया, and finally I have to close my main. अच्छा, मेन क्लोज हो गया, जो फाइल ओपन थी उसे भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो एफ क्लोज एफ पी वापस से कॉल कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने इसको जब सेव नहीं किया है तो इसने कोई नाम नहीं पूछा है हमसे इस प्रोग्राम को। Once we compile it, it will ask to save it first. C. Let give us some name dot C. Change the extension as C. Save the file. Okay, there is one error. What is error? Only sign of exclamation is there, means not is there, but equal operator is not mentioned. So एक बार फिर से compile करते हैं। See, it is error free. You can see over here, no error, no warning. Means ये प्रोग्राम मेरा बन गया। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। Give employee ID, say 1001. Enter name, say name is Mr. ABC. His age is say 21. His salary is say something. One more time, 1002. Its name is Mr. PQR. His age is say again 24 years and its salary is something. तो दो रिकॉर्ड पूरे हो गए। अब इस प्रोग्राम को रुक जाना चाहिए और आउटपुट हमको रीड करके शो करना चाहिए। ये देखिए, यू कैन सी ID equals to 1001, name equals to ABC, age equals to 21, salary something,
and then 100 ID, again second record is there. So in this way we can check whether file is there or not. अब चलते हैं फिजिकली फाइल को जाके चेक करते हैं एम्प्लॉय डेटा डॉट टेक्स्ट वहां बना कि नहीं बना. फाइल फोल्डर में आ रहे हैं और यहाँ चेक करते हैं कि एम्प्लॉय डेटा है कि नहीं. एम्प्लॉय डेटा, here it is. Let me zoom it for you. जो रिकॉर्ड मैंने ब्लैक स्क्रीन पे आपको टर्मिनल पे दिखाए थे वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. ये पूरे रिकॉर्ड यहाँ दिख रहे हैं आपको. Let's move to the slide. So this is end of part 5. Hope you are able to understand the programs, but you will only fully understand it once you download it and by yourself you do something with the code on your own terminal. Before that you will not be able to fully grasp the concept. So please download the files mentioned in the description box, try to run it on your own terminal, and then only say that you are equipped with this particular concept. Okay, happy learning and see you in the next session. Thank you.